I hope all of you saw the lecture of resistance and resistivity, that is Ohm's law. Are you all Yes, sir. prepared? Have you prepared it properly? Yes, sir. Good. Okay, let's start. So let me just frame my questions right away and then get the answers from you. The first question being, what is Ohm's law? Okay, and the person who would answer me is Janvi Patil. Janvi, can you hear me? Janvi, can you hear me? No, I cannot hear you, Janvi. Okay, you fix your mic. I will go to Arpita. Arpita, Sir, it was introduced by George Simon Ohm. okay. He found out that the current flowing through a metallic wire is, sir, Did, I don't remember the whole thing. no problem, I will tell you. I will help you with it. Uh, So, Ohm's law states that the potential difference applied across the ends of the conductor is directly yeah, proportional to the current flowing through the conductor, but we have to just make sure that the physical conditions like the physical state and the temperature of the conductor remains constant or remains the same, right? So, that is Ohm's law. Ohm's law states, can you please repeat it again? uh, the current flowing through a metallic wire and the potential difference across its terminals. Like I have written the definition like that. Yeah, so current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across its ends, given that the physical conditions like physical state and temperature of the conductor remains the same, does not change. Okay, so this is the law given by George Simon Ohm, and it is known as Ohm's law. So in this law, how are potential difference and current related using Ohm's law? What is the relation between V and I according to Ohm's law? And Niharika will answer me. Niharika, are you there? Janvi, can you hear me now? Pranav, Yes, sir. please on your cam. Tell me, how are potential difference and current related? What is the relation between potential difference and current? ओम्स लॉ में V और I का रिलेशन क्या होता है? Don't. Sir, may I? वेट वेट
वेट एवरीवन। प्रणव, तुमने नोट्स बनाए थे? Yes, sir. तो तुमने नोट्स में लिखा नहीं है, No, sir. क्यों? Sir, not written that side. I'll show you. See, here is the relationship. V is directly proportional to I. यही था ना नोट्स में, या कुछ और दिखाया था मैंने लेक्चर में? ये था ना? Yes. Then why didn't you write it? मुझे तुम्हारे नोट्स भेजो प्रणव, मुझे चेक करना है। Sir, I have sent it. You have sent the notes to me of this part. Yes, sir. Yes. So how are you writing, like I don't understand, ये important चीज़ें छोड़ के क्या लिख रहे हो तुम? I will check it and I'll get back to you. Arunima, can you please tell me how are potential difference and current related? So they are directly proportional to each other? Very good. Potential difference is directly proportional to current. So what do you mean by this? In any circuit, suppose we have a fixed resistance, and if I attach a voltmeter across it, and then I have an ammeter here, a battery here, and here I have a variable resistance. ठीक है? This is variable resistance or rheostat. This is the fixed resistance. This is ammeter. This is the battery, positive and negative terminal. So if I change the value of rheostat, the value of current in the circuit changes. Rheostat की वैल्यू अगर मैं चेंज करूंगा तो करंट की वैल्यू चेंज होगी। अगर करंट कम होगा, इफ द current is decreasing, what changes will you see here in the voltmeter? Voltmeter will show lesser voltage. इसका मतलब है अगर करंट में रिड्यूस कर रहा हूं तो वोल्टेज भी कम हो रहा है, अगर करंट में इंक्रीज कर रहा हूं तो वोल्टेज भी इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या है? V is directly proportional to I. Current and voltage, or voltage and current, are directly proportional to each other. If you increase the voltage, current will increase. If you decrease the voltage, current will decrease. Suppose this is a 6 volt battery. अगर 6 वोल्ट की बैटरी को निकाल के मैं 3 वोल्ट की बैटरी डालता हूं, ठीक है? Who will be able to tell me? Arunima, you only tell me. If I change the battery from 6 volt to 3 volt, what will happen to the current? So it will also be half. It will reduce. Exactly, it will become half, because I've made my voltage half. Voltage half कर दिया तो current भी half हो जाएगा. That shows that voltage is directly proportional to current. And if I want to prove that current is also directly proportional to voltage, I will use rheostat. You know what is rheostat? I've given the example in the video. I've given the example rheostat, variable resistance. किसी को पता है variable resistance क्या होता है? कोई एग्जाम्पल दे सकता है? Sir, Yes. sir, it's like an gadget or instrument to change the current. Can you, you also use in your homes rheostat, variable resistance तुम लोग खुद यूज करते हो अपने घर पे. You know the example? Yes, sir, fan. फैन का रेगुलेटर. तुम्हारे घर पे फैन है? दिस इज अ डम क्वेश्चन टू आस्क. ऑफ कोर्स फैन है.
फैन में रेगुलेटर है? अगेन वन मोर डम क्वेश्चन, ऑफ कोर्स सबके फैन में रेगुलेटर होता है। अगर रेगुलेटर नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? कैन एनीवन टेल मी? Speed. फुल स्पीड पे चलता है फैन। फैन रोटेट्स एट द, यू कैन से, हाईएस्ट स्पीड, लेकिन हमेशा हमें उतनी स्पीड या उतनी हवा की ज़रूरत नहीं होती है। सो दैट्स वाई वी नीड टू रेगुलेट द स्पीड ऑफ द फैन। इफ वी नीड टू रेगुलेट द स्पीड ऑफ द फैन, इसका मतलब क्या है? स्पीड कैसे कम करेंगे? सो वी नीड टू लिमिट द करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट ऑफ द फैन। रिमेंबर, if you want to regulate the speed of the fan, you need to limit the amount of current flowing in the circuit of the fan. ये कैसे कंट्रोल करोगे तुम? तो यू विल अटैच अ रियोस्टैट और अ रेगुलेटर जो स्पीड को कम ज्यादा कर सकता है। कैसे करता है? सो यू सी ऑन योर रेगुलेटर देयर आर नंबर्स मार्क्ड 1 2 3 4 5. 1 मीन्स हाइएस्ट रेजिस्टेंस। 1 मतलब हाईएस्ट रेजिस्टेंस। 1 पे जब स्पीड रखते हो तुम फैन की, तो वो सर्किट का रेजिस्टेंस, फैन की सर्किट का रेजिस्टेंस मैक्सिमम होता है। एज यू गो ऑन इंक्रीजिंग द स्पीड, द रेजिस्टेंस इज डिक्रीजिंग। 1 पे रेजिस्टेंस मैक्सिमम है, करंट सबसे कम रहेगा, स्पीड कम हो जाएगी। 2 पे रेजिस्टेंस थोड़ा कम होगा, करंट थोड़ा बढ़ेगा, स्पीड बढ़ जाएगी, एंड सो ऑन यू कैन इंक्रीज द रेजिस्टेंस एंड increase the current and decrease the resistance with the help of regulator. So ये जो regulator है ना, fan का regulator, it is the best example of this rheostat. So my question was, what if you want to change the current? मुझे बैटरी चेंज नहीं करनी है, बैटरी एक ही रखनी है 6 वोल्ट की, लेकिन मुझे करंट चेंज करके देखना है कि वोल्टेज पे क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, सो वोल्टेज तो मैं यहाँ पे मेजर कर रहा हूँ। रिमेंबर, वोल्टेज इज गेटिंग मेजर्ड ओवर हियर इन द वोल्ट मीटर. So if I change the settings of the rheostat, if I increase or decrease its value, तो क्या होगा कि करंट कम ज्यादा होगा। अगर करंट कम ज्यादा होगा तो तुरंत ये वोल्टेज पे एक इफेक्ट दिखेगा, एंड यू विल सी दैट ऑन डिक्रीजिंग द करंट वोल्टेज ऑल्सो डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। मतलब ऑन इंक्रीजिंग द करंट वोल्टेज ऑल्सो इंक्रीजेस. सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड वोल्टेज एंड करंट? दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. और यही रिलेशन किसने बताया था हमको? जॉर्ज साइमन ओम ने. जॉर्ज साइमन ओम, और उसी को ओम्स लॉ बोलते हैं. नाउ आई थिंक एवरीवन नोज व्हाट इज ओम्स लॉ. सबको पता है ओम्स लॉ क्या है अब. ठीक है, ओम्स लॉ स्टेट्स दैट करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखना, टेम्परेचर और फिजिकल कंडीशंस को चेंज नहीं करना है, तभी ओम्स लॉ वैलिड है. ठीक है, okay, next question. Atharva, can you hear me? Atharva, तुम्हारा जब नाम लिया जाता है ना, तुरंत मेरे को रिस्पॉन्स करो यार. ऐसे नींद में हो गया कि संडे मॉर्निंग क्लास रख के मैंने गलती कर दी? तुरंत रिस्पॉन्स चाहिए मुझे. अथर्व बोला मतलब यस सर. सामने माइक का बटन है, ऑन करो, बात करो मेरे से, क्या प्रॉब्लम है? तुम ऐसा चुपचाप बैठे रहोगे, अरे मेरा टर्न आ गया, अभी पता नहीं मेरे से क्या पूछेंगे. सी, मैं तुमसे जब क्वेश्चन पूछता हूं तो मैं उसका आंसर भी साथ में देता हूं, मैं तुम्हें समझाता हूं, हेल्प करता हूं. यू शुड नॉट बी म्यूट. यू शुड नॉट बी म्यूट व्हेन द क्वेश्चन इज आस्क्ड टू यू. डोंट बिहेव दिस वे मैन. देन हाउ कैन आई टीच यू? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट दिस वे. अथर्व, हाँ, तुरंत बोलने का यस सर, तभी मैं आगे बात कर सकता हूं. अथर्व, मेरे को बताओ कि हमने यहां पे रिलेशनशिप तो निकाल लिया वोल्टेज और करंट का. ठीक है, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. अब उसका एक फॉर्मूला बनाना है मुझे, तो मुझे ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाना पड़ेगा ना, और यहां पे इक्वालिटी का साइन डालना पड़ेगा. सो वोल्टेज इज इक्वल टू डैश मल्टीप्लाइड बाय करंट, या फिर वोल्टेज इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाइड बाय डैश. तो ये डैश क्या होता है? व्हाट इज दिस डैश? यहां डैश के जगह पे क्या आएगा अथर्व? कैन यू टेल मी? नहीं पता तो बोलो नहीं पता सर, तो मैं आगे बढ़ूंगा.
ओके, नो रिस्पॉन्स फ्रॉम यू. सॉरी, Trying. ट्राइंग नहीं, ट्राइंग का बात नहीं है यहाँ पे, बात है सीधा आंसर देने की. ठीक है, ट्राइंग के उसमें क्या होगा, हमारा टाइम वेस्ट होगा. हमको टाइम वेस्ट करना ही नहीं है, क्योंकि संडे मॉर्निंग है, सबको एंजॉय करना है, मेरे को भी करना है यार, मेरी भी संडे है. तो मैं तुम्हारा क्लास क्यों ले रहा हूँ, ताकि हमारा जो एक टच है ना वो मिस ना हो. ठीक है, 1 घंटे की क्लास में हम लोग एटलीस्ट उतना पार्ट कवर कर लेंगे, इसलिए क्लास ले रहा हूँ. ट्राइंग मत बोलो, बोलो आता है कि नहीं आता है. ठीक है, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन पूछा, इतना कोई बहुत बड़ा डेरिवेशन नहीं पूछ लिया तुमसे. केशर का टर्न है. केशर, यू हैव टू आंसर Yes, sir. v इज इक्वल टू डैश मल्टीप्लाइड बाय r या फिर i मल्टीप्लाइड बाय डैश. यहाँ पे डैश में क्या आएगा? Sir, resistance symbol R. वेरी गुड केशर. यहाँ पे आएगा रेजिस्टेंस. सो v इज इक्वल टू r इंटू आई या फिर v इज इक्वल टू आई इंटू आर. यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है ना, इट इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. प्लीज नोट कर लो, जिसने भी लेक्चर नहीं देखा है, जिसको भी ये नहीं आइडिया है, जो भूल चुका है, जिसने नोट्स ठीक से नहीं लिए, सब लोग लिख सकते हैं. ठीक है, रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो तुम्हें 9th स्टैंडर्ड में इंट्रोड्यूस हुआ था, याद रखना. 9th स्टैंडर्ड पे कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था वो भी मैं बताता हूँ. चैप्टर नंबर 2 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में, जब हम लोग F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A को हम लोग लिखते थे F इज इक्वल टू एम ए, या फिर मैंने कुछ उल्टा लिखा है, F इज इक्वल टू एम ए. हाँ नहीं, सही है, F इज इक्वल टू एम ए. ठीक है, नहीं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M टाइम्स A. यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी K था जिसकी वैल्यू 1 थी. यस, दिस इज करेक्ट. तो यहाँ पे हमें ये प्रोपोर्शनलिटी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था क्लास 9th में. सेम कॉन्सेप्ट को हम यूज करते हुए V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I में कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हम लोग यूज कर रहे हैं R. और ये R का क्या नाम है, क्वांटिटी कौन सी है, ये रेजिस्टेंस. तो यहाँ पे एक नई क्वांटिटी तुम्हारे सामने इंट्रोड्यूस होती है, रेजिस्टेंस. ठीक है, ओके. केशर, I would want to continue with you and ask you that what is resistance? Resistance का मुझे definition बताओ. Sir, resistance is an obstruction to flow of current. Very good. What is resistance? ठीक है, resistance क्या है? Resistance is a obstruction to the flow of current in any circuit. मतलब किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस होता है. ठीक है, तो मुझे बताओ केशर, सिल्वर तो बहुत बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, Yes, sir. तो सिल्वर में भी होता है क्या रेजिस्टेंस? Yes, sir, it is there, but इट इज वेरी लेस. yes, little bit. It is very less. Yeah, you are very right. Resistance is there with every type of conductor, but its value is more or less. कभी उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, कभी कम होती है. सिल्वर के लिए, कॉपर के लिए रेजिस्टेंस कम होता है. ठीक है, एल्यूमिनियम के लिए थोड़ा ज़्यादा होता है, आयरन के लिए और ज़्यादा होता है. फिर कुछ एलॉयज होते हैं, जैसे एक नाइक्रोम है, नाइक्रोम के बारे में भी मैंने बताया था लेक्चर में. तो नाइक्रोम में रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है क्योंकि वो अलॉय है. ठीक है, और इसलिए नाइक्रोम का यूज़ होता है हीटिंग एलिमेंट में, आयन में, इलेक्ट्रिक टोस्टर में, इलेक्ट्रिक हीटर में. ठीक है, बिकॉज उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है. तो रेजिस्टेंस हर एक सब्सटेंस में होता है. कैन यू टेल मी केशर, रबर का रेजिस्टेंस कितना है? मुझे वैल्यू नहीं Sir, चाहिए, मुझे एक Sir, it is very low. लो. It is not only. नो, रबर Sorry, ऑब्स्ट्रक्ट. rubber is an insulator. Sorry, sir. या It is there. इट इज़ वेरी हाई. It is very high. Sorry, sir. Yes, the resistance of rubber is infinite. क्या बोलना है तुम्हें? Infinite. The resistance of rubber is infinite. It is extremely high. It is very high. ठीक है, resistance of rubber is very high. Remember. Yes, sir. Okay. Krishna, Yes, sir. let's come to resistance and find its numerical value. Resistance का फॉर्मूला बता सकते हो? उसका मीनिंग तो समझ गए
कि ये ऑब्स्ट्रक्शन है, इसका फॉर्मूला बताओ ना। कृष्णा, कौन सा लॉ है ऐसा जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बताता है? अभी पढ़ा हमने, अभी पढ़ा, स्क्रीन पे है, सामने है। कौन सा लॉ? Volt is equal to I into R. ये तो वोल्टेज का फॉर्मूला है ना, पोटेंशियल डिफरेंस का। रेजिस्टेंस का क्या होगा? R इज इक्वल टू वी अपॉन आई। या आई को नीचे ले लो वी के, आर का फॉर्मूला मिल जाएगा। R इज इक्वल टू वी अपॉन आई, इसको याद रखना। देखो ओम्स लॉ से हमें 3 फॉर्मूला मिलते हैं, एक V इज इक्वल टू आई आर, एक R इज इक्वल टू वी बाय आई, और एक I इज इक्वल टू वी बाय आर। ये तीनों फॉर्मूला हमें किससे मिलते हैं? ओम्स लॉ से। और तीनों का यूज़ है, करंट ढूंढना है, रेजिस्टेंस ढूंढना है, पोटेंशियल डिफरेंस ढूंढना है, तो तीनों का यूज़ करना पड़ेगा अपने को। ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। अच्छा, मुझे बताओ पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या है कृष्णा? ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस फास्ट, ये Joules per coulomb. वेट, इसको हम लोग बोलते हैं वोल्ट। क्या बोलते हैं? वोल्ट। करंट का ऐसा यूनिट क्या है? करंट का ऐसा यूनिट क्या है? I. एम्पियर। आई उसका सिंबल है। करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर है, भूल मत जाओ, जो भी पहले पढ़ा है उसको याद रखना है। नेक्स्ट, गीतिका, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? सॉरी, ओम। इजंट इट वोल्ट पर एम्पियर? I cannot hear you, Gitika. Sir, Yeah. 1 ohm equals to 1 volt by 1 ampere. You are absolutely correct. The SI unit of resistance is volt per ampere, but it is given a special name which is ohm, and its symbol is Greek letter omega. Omega. This is omega. ठीक है, ये ओम का सिंबल है। द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, जिसका सिंबल है ओमेगा। वोल्ट पर एम्पियर से ये आया है। इट इज़ नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट हु गेव अस ओम्स लॉ, जॉर्ज साइमन ओम, उसके नाम के ऊपर ये रखा है। गीतिका, कैन यू डिफाइन 1 ओम? 1 ओम की डेफिनेशन बताओ। We can say that 1 ohm is potential difference applied across its end is 1 volt. Wait, I will help you. Wait. Do you see this formula? ठीक है, हम लोग डेफिनेशन बनाएंगे अभी। वी विल मेक द डेफिनेशन। ठीक है, डू यू सी दिस फॉर्मूला? सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू राइट इट लाइक दिस। आर इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। ठीक है, व्हाट इज आर? द रेजिस्टेंस 1 ओम। ठीक है, नाउ वी कैन डिफाइन 1 ओम easily. I'll take help from the next person. Kaushal, 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 please on your cam. Kaushal, I know you have not seen the video, ठीक है, but I know you are a smart boy and you can frame this definition. ठीक है, I will help you. Okay, Kaushal? अभी तक जो पढ़ा है मैंने, तेरे को समझ में आया ना रेजिस्टेंस के बारे में? आई एम गोइंग टू टॉक मोर अबाउट इट। ओके, आई एम गोइंग टू टॉक मोर अबाउट इट, बट बिफोर दैट विल जस्ट फ्रेम द डेफिनेशन ऑफ 1 ओम। सो 1 ओम इज 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। ठीक है, कैसे लिखेंगे 1 ओम की डेफिनेशन? मैं शुरुआत करता हूँ। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर is said to be
1 ohm when resistance of a conductor is said to be 1 ohm when आगे बताओ. When volt of potential difference, when 1 volt of potential difference is used in a current is of 1 applied ampere, in a current of 1 ampere. नहीं, थोड़ा सा जल्दी में बोल दिया तुमने. when 1 volt of potential difference is applied across the ends of a conductor and a current of 1 ampere flows through it. ठीक है. when 1 volt of potential difference is applied across the ends of the conductor and a current of 1 ampere flows through it, then we can say that the resistance of that conductor is 1 ohm. इसी फॉर्मूला से पूरा डेफिनेशन बिल्ड होता है. the resistance of a conductor is said to be 1 ohm when a potential difference of 1 volt is applied across the ends of the conductor and a current of 1 ampere flows through it. This is the definition of 1 ohm which you must remember. इसको तुम्हें याद रखना है. ठीक है. Gitika and Kaushal, is it clear guys? Gitika and Kaushal, show thumbs up. Show thumbs up. Okay, whenever you, is it clear? Okay, very nice. Next, Aniket. Yes, sir. Aniket, you have to explain me the physical meaning of resistance. अभी भी ये resistance तो समझ में आया कि obstructions to the flow of electrons है, लेकिन how this obstruction is taking place, you know, in the conductor? Sir, by the excess amount of the electric current flowing through it. No. Suppose ये conductor है. Yes, sir. ठीक है. Now there are some electrons here which are flowing from positive terminal to the negative terminal. They are all flowing in this direction. ठीक है. They are all flowing. They are all flowing मतलब electric current flow कर रहा है, right? Yes. So how and where is the obstruction? Obstruction किधर है? Sir, in the ends. In the ends, no. I'm sorry, I don't agree with you. I would like to ask Manas. Yes, sir. Manas, please explain, if you can on your cam and explain. Yeah, Manas. Please explain किधर है ये? Where is the obstruction? I don't see any obstruction. तुमने लेक्चर देखा है मानस? क्यों? No, sir. क्यों मानस? सर बिकॉज सर एक्सरसाइजेस में सर थोड़ा टाइम गया, मेरे कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं थे तो मैंने लाइक रिवाइज. अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है. ओके, देन आई थिंक आई विल गो टू द नेक्स्ट पर्सन. निहारिका, Yes, sir. I want you to help me. So, atoms of the conductor Yes, create obstructions to the flowing electrons. yes, sir. You are absolutely correct. There are some atoms which are not flowing. ये तो सिर्फ आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वही फ्लो करते हैं मेटल्स में, एंड दे कंस्टिट्यूट द करंट. सो हु इज नॉट फ्लोइंग? द पार्टिकल्स विच आर नॉट फ्लोइंग आर द एटम्स एंड देयर पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई. तो वो हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है. यू कैनॉट गेट रेड ऑफ देम. दे आर एवरीवेयर, द पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम्स एंड देयर न्यूक्लियाई. ठीक है, वो तो हर जगह है. तो ये इलेक्ट्रॉन्स का रास्ता रोकते हैं. दे गिव ऑब्स्ट्रक्शंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, टू द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड दे ऑफर रेजिस्टेंस. मतलब जो बाकी के एटम्स है और न्यूक्लियाई है, दे ऑफर रेजिस्टेंस. रिमेंबर,
So the reason behind resistance is this are these atoms and their nuclei. They obstruct the flow of electrons. This is the physical meaning of the concept of resistance. Remember, resistance word का ही मतलब है obstruction, but तुम्हें ये पता होना चाहिए obstruction कौन दे रहा है, कहाँ से आ रहा है obstruction. ठीक है. So I think enough of information is given on the concept of resistance. Now I think we can move ahead and go to the graphical part of it. So you remember I told you that there is this circuit. ये सर्किट एक्सप्लेन करता है, किसको एक्सप्लेन करता है? पूरे रेजिस्टेंस के प्रेजेंस को और कैसे वोल्टेज और करंट एक दूसरे से रिलेटेड है उसको. ठीक है. सो दिस इज द सेटअप फॉर दैट एक्सपेरिमेंट. दिस इज द सेटअप. सो व्हाट वी अटैच? अ बैटरी विथ फिक्स्ड रेजिस्टेंस, अ की. ठीक है. की भी होता है, स्विच भी होता है सर्किट में, फिक्स्ड रेजिस्टेंस होता है, उसके अक्रॉस एक वोल्ट मीटर होता है, सीरीज में एमीटर होता है. देखो वोल्ट मीटर पैरेलल में है और एमीटर सीरीज में है, और एक रियोस्टाट होता है और बैटरी. ठीक है. सो व्हाट इज हैपनिंग नाउ? when the battery is connected, current is flowing through this circuit and the circuit is complete. So as I told you, I can change the value of rheostat. I can play with this rheostat, क्योंकि rheostat अपने फैन के रेगुलेटर जैसा है, उसके साथ मैं खेल सकता हूँ, उसके साथ मैं प्ले कर सकता हूँ. So I'll decrease and increase the value of rheostat. अगर मैंने rheostat में वैल्यू को कम किया तो करंट इंक्रीज होगा, बिकॉज रेजिस्टेंस कम होगा, करंट इंक्रीज होगा. अगर रियोस्टैट की वैल्यू को मैंने इंक्रीज किया तो करंट क्या होगा? करंट डिक्रीज होगा. सो आई कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज द करंट. ठीक है. सो मैं एक टेबल बना लेता हूं. दिस इज जस्ट लाइक अ ट्रुथ टेबल विच वी हैव सीन लास्ट ईयर इन मैथ्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्योंकि मुझे यहाँ ग्राफ प्लॉट करना है ना. यहाँ पे वैल्यू होगी करंट की और यहाँ पे होगी पोटेंशियल डिफरेंस की. ठीक है. सो मैं इस सर्किट में कुछ अलग अलग वैल्यूज ले लूंगा करंट की और पोटेंशियल डिफरेंस की, बाय चेंजिंग द रियोस्टैट्स वैल्यू. सपोज मैं करंट की वैल्यू लेता हूँ 1 एम्पियर, एंड मतलब रियोस्टैट की वैल्यू को एडजस्ट करता हूँ सो दैट माई एमीटर शोज मी द रीडिंग ऑफ 1 एम्पियर. At the same time, I will check the reading on voltmeter and it shows me 2 volts. ठीक है. मैं रियोस्टैट की वैल्यू को और कम करता हूं, करंट की वैल्यू थोड़ी बढ़ जाती है, 2 एम्पियर हो जाती है. ठीक है. वोल्टेज की वैल्यू मुझे थोड़ी और ज्यादा मिलेगी, दैट इज अगर मैं यहाँ पे रीडिंग लेता हूं तो इट विल शो मी 4 वोल्ट्स. ठीक है. नाउ आई विल फर्दर डिक्रीज द वैल्यू ऑफ रियोस्टैट टू इंक्रीज द करंट टू 3 एम्पियर, which shows me over here in the ammeter, and then the voltmeter shows me the corresponding value of voltage which is 6 volts. तो मुझे 3 वैल्यूज मिल गई करंट की और वोल्टेज की. एंड रिमेंबर दिस इज VI ग्राफ. दिस ग्राफ इज नोन एज VI ग्राफ. ठीक है. VI ग्राफ में लेट मी जस्ट शो यू हियर. You see this VI ग्राफ. VI ग्राफ में हमेशा याद रखना कि वोल्टेज y एक्सिस पे होता है और करंट x एक्सिस पे होता है. वोल्टेज इज ऑन y एक्सिस, करंट इज ऑन x एक्सिस. सो इफ आई मेक अ सिमिलर ग्राफ ओवर हियर बाय टेकिंग वोल्टेज एट y एक्सिस एंड करंट एट x एक्सिस, तो क्या होगा? मैं मार्क करूंगा इसको 0 1 2 3 4 5 6 7 8. यहाँ भी मार्क करूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है. और मुझे जब करंट 1 होता है तो वोल्टेज 2 वोल्ट मिलता है. तो दिस विल बी माई फर्स्ट पॉइंट. देन
दिस विल बी माई सेकेंड पॉइंट. करंट 2, वोल्टेज 4. ये करंट एम्पियर में है, वोल्टेज वोल्ट में है. ठीक है, फिर करंट की वैल्यू जब 3 एम्पियर होती है तो वोल्टेज होता है 6. ठीक है, अब मैं इसमें से पास होती हुई एक लाइन बनाऊंगा. ये लाइन होगी ऐसी स्ट्रेट लाइन. इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन. आई होप कुछ लोग नोट कर रहे हैं ये, बिकॉज दिस इज आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज वी आई ग्राफ. ठीक है, सो ये मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलती है. अब ये ग्राफ का कुछ फिजिकल इंपॉर्टेंस है, इसके कुछ फीचर्स है, ये मुझे समझने हैं. ठीक है, फीचर्स को. चलो, लेट मी गो टू नितिश. नितिश, आर यू देयर? नितिश, प्लीज ऑन योर कैम and keep it on. There is no need to off the cam, right? We are all beautiful people here, we can see each other, right? No need to off the cam, please. Guys, keep your cams on so I can see that you are studying. Okay, great. Nitish? Sir, I'm on computer, so can It's okay, no problem, Krishna. If there are some technical issues, you can keep it off, but if it can be turned on, keep it on. Okay. Sir, actually today network is low, so Yeah, no when problem. I'm oning the camera, your voice is breaking. So Okay, no problem, no issues. As long as you can hear me and you can answer my questions, it's perfect. Okay, Nitish, can you hear me clearly? yes, sir. अच्छा, ये जो ग्राफ है ना, तूने देखा है ना लेक्चर? ओके, ग्रेट. ये जो ग्राफ है वी आई ग्राफ, ठीक है, मुझे बता सकता है कि इफ़ इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन, इफ़ इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन, इसका क्या मतलब है? फॉर अ कंडक्टर, अगर मैं वी आई ग्राफ प्लॉट करता हूँ विद दिस एक्सपेरिमेंटल सेटअप, मतलब मैंने ये सेटअप में कॉपर को यूज़ किया है हर जगह. कॉपर का वायर, कॉपर का रेजिस्टर, रियोस्टैट में भी कॉपर की सर्किट, हर जगह कॉपर ही है. ठीक है, अब मैंने कॉपर के लिए ये पूरा एक्सपेरिमेंट किया, मुझे ट्रुथ टेबल मिला और मुझे ये ग्राफ भी मिल गया. नाउ आई एम गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन व्हेन आई जॉइन द पॉइंट्स ऑफ द कोऑर्डिनेट्स व्हिच आई गॉट ओवर हियर. आई गेट अ स्ट्रेट लाइन. सो व्हाट डज दैट टेल मी? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रेट लाइन? सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है? ये जो हमें स्ट्रेट लाइन मिलता है उसका सिग्निफिकेंस क्या है? If you do not know, there is no need to remember, because if you don't know, you cannot remember it. You can tell that I don't know, so we can go ahead. Do you know it or you don't know it? Sir, I don't know it. It's okay, no problem. If you don't know, it's not a problem. I would like to go to Arpita. Sir, I don't know. Okay, Arpita, that was very quick. Thank you so much. I would like to go to Pranav. Yes, sir. ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका मतलब क्या होता है बेटा? Don't know, sir. Okay, I will tell you. Note it down, everyone. Sir, can I try? Yes, please, Krishna. I would really Sir, be happy. Does it mean that it is uniform? The resistance is uniform or the resistance is constant. You are right, but that is not the significance actually which I am looking for. So everyone, please note it down. Significance of a straight line is the conductor which we are using. Suppose हम लोग कॉपर यूज कर रहे हैं, जो भी कंडक्टर हम यूज कर रहे हैं, कंडक्टर obeys or follows Ohm's law. क्या सिग्निफिकेंस है स्ट्रेट लाइन का? कि कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो करता है. तो सारे कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो करे ऐसा जरूरी नहीं है. ठीक है, जब किसी कंडक्टर के लिए वी आई ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है तो ही वो ओम्स लॉ को फॉलो करता है. और कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो वी आई ग्राफ में स्ट्रेट लाइन नहीं देते हैं. ठीक है, ऐसे जो कंडक्टर है
जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, ओबे करते हैं, उसको बोलते हैं ओहमिक रेजिस्टर्स। ओहमिक रेजिस्टर्स मतलब हमारे चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले सब ओमिक रेजिस्टर है, क्योंकि सब ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। बट ऐसे भी कुछ मटेरियल है जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, रिमेंबर। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रेट लाइन। सेकेंड क्वेश्चन इज, Me, sir, यस I have a doubt. यस प्लीज। Those things that does not follow Ohm's law, in that case, do we get current and volt different? Yes, they are not different as in, but they are not proportional to each other. So the graph is somewhat like this, Arpita. The voltage and current graph, VI graph, is like this. You see, it is not a straight line, it is a curve. Do you see that? The voltage and current line is a curve. That means it is not a straight line. Straight line नहीं है, इसका मतलब क्या है कि this is a non-ohmic resistor. Non-ohmic मतलब ये ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता। तो ऐसे एग्जाम्पल क्या है नॉन ओमिक रेजिस्टर के, ये मैं तुम्हें बताता हूं। सेमीकंडक्टर्स होते हैं कुछ, इसके बारे में तुम हायर स्टैंडर्ड्स में पढ़ोगे, वो नॉन ओमिक रेजिस्टर होते हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, ये भी सेमीकंडक्टर से ही बने होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लाइक डायोड, तुम्हारा जो एलईडी होता है ना, एलईडी, इट इज वन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। लाइट एमिटिंग डायोड, ये ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते हैं, ये नॉन ओमिक रेजिस्टर होते हैं। ठीक है, तो ओम्स लॉ फॉलो करने वाले रेजिस्टर को ही हमें पढ़ना है, दैट इज ओमिक रेजिस्टर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस ग्राफ, VI ग्राफ, इज हाउ टू फाइंड द रेजिस्टेंस of a conductor, how to find the resistance of a conductor using VI graph। अगर तुम्हें VI ग्राफ दिया है तो उससे रेजिस्टेंस कैसे ढूंढोगे? चलो नेक्स्ट कौन है हमारे लिस्ट में? अरुणिमा। So will resistance equal to V upon I? Yes, but how you will find V upon I using the graph, beta? So slope. Exactly. You are absolutely correct. I am so happy that you gave the correct answer. You have to find the slope of VI graph. You are right. Slope of VI graph. देखो सब लोग, she is giving the answer. एंड दिस इज वन ऑफ द ट्रिकीएस्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, क्योंकि जैसे ही ग्राफ आता है लोग पेज पलट लेते हैं, क्योंकि ग्राफ है ही ऐसी चीज, लोग समझना नहीं चाहते। बट अरुणिमा इज गिवन द करेक्ट आंसर। इफ वी वांट टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर यूजिंग VI ग्राफ, वी विल फाइंड द स्लोप ऑफ VI ग्राफ। अब कोई मुझे बता सकता है क्या स्लोप का फॉर्मूला क्या है? लास्ट ईयर 9th में सीखा था सबने। यस प्लीज। राइज अपॉन रन। क्या बात है, राइज अपॉन रन। ये जो नए स्टूडेंट है वो लोग दे आर वंडरिंग ये राइज अपॉन रन क्या है यार। आई विल टेल यू राइज अपॉन रन क्या है। राइज अपॉन रन इज वन फॉर्मूला विच वी हैव मेड अप। ठीक है, लास्ट ईयर हमने ये सीखा है फॉर्मूला, और उसके लिए मैं थोड़ा जूम इन करना चाहता हूँ ताकि मैं तुम्हें राइज अपॉन रन सिखा सकूं। ठीक है, लेट्स जूम इन। So can't we find it with hypotenuse? यू कैन। हाइपोटेनियस क्या होता है? Pythagoras theorem. यू कैन, बट मैं तुम्हें इजी तरीका सिखा रहा हूँ बेटा, पाइथागोरस की जरूरत नहीं है। You don't need Pythagoras when you have rise upon run. I'll explain you what is rise upon run. Is the graph clearly visible on your screen? Yes, Okay, sir. I'm going to show you what is rise upon run. Okay, so rise upon run के लिए you will choose 2 points on the graph. Suppose ये एक point choose किया मैंने और ये एक point choose किया। अब यहाँ पे एक horizontal line बनाओ और एक vertical line बनाओ ताकि हमारा एक right angle triangle complete हो।
नाउ अर्पिता विल से मैंने तो यही बोला था, लेकिन मैं कुछ अलग बता रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुनो। ये जो वर्टिकल लाइन है ना, उसको हम लोग बोलते हैं राइज, क्योंकि राइज हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन में होती है कोई भी चीज़। और ये जो हॉरिजॉन्टल है ना लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं रन, क्योंकि रन हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है। rise, you how you rise vertically, and how you run horizontally, इसलिए rise upon run। अच्छा, rise मतलब ये दोनों पॉइंट के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस। अब ये पॉइंट है 4 और ये पॉइंट है 6, नीचे वाला 4 ऊपर वाला 6, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? 2 अपॉन रन। रन मतलब ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, दैट इज 2, एंड 3 के बीच का डिस्टेंस, दैट इज 1। 2 अपॉन 1 कितना होता है? 2। तो 2 ओम इज द रेजिस्टेंस। राइज अपॉन रन इजी है कि नहीं? है ना इजी, राइज अपॉन रन याद रखना। इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी है स्लोप का, जो हमने लास्ट ईयर सीखा था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और अगर तुम देखो ध्यान से, राइज अपॉन रन में हमने वही किया है, ठीक है। ये है तुम्हारा y2 और ये है तुम्हारा y1, y2 माइनस y1, और ये है तुम्हारा x1 और ये है तुम्हारा x2, x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 इज 6 माइनस 4 और x2 माइनस x1 इज 3 माइनस 2, विच इज 2/1, विच इज 2 ओम। देखो यही सेम आंसर आया, राइट। तो स्लोप कैसे ढूंढते हैं उसके भी मैंने तुम्हें थोड़ा रिवीजन करवाया है, जो लास्ट ईयर पढ़ा था सबने, ठीक है। तो हमेशा याद रखना वी आई ग्राफ का सिग्निफिकेंस क्या है। वी आई ग्राफ से तुम ढूंढ सकते हो स्लोप, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज ऑफ वी आई ग्राफ। So, sir, do we have to write rise upon run in the worksheet, or y2 minus y1 upon? Yeah, so rise upon run is for your memory and technique. It is a technique. It is not necessary that you mention it in your school exams and textbooks and worksheets and everything. This is rise upon run is just a technique which we use to memorize y2 minus y1 upon x2 minus x1. ठीक है, इट इज अ विजुअल एड टू फाइंडिंग स्लोप। स्लोप ढूंढने का एक विजुअल टेक्निक है, ठीक है। प्लीज रिमेंबर इट, इट इज क्वाइट यूजफुल। एंड Thank you, sir. yes, you're welcome. And the next thing you must remember is the significance of the straight line. What is the significance of straight line? Conductor obeys Ohm's law, मतलब ये ohmic conductor है। and second, how to find the resistance? By finding the slope of VI graph, ठीक है। so this much information you must have about VI graph, ताकि तुम कोई भी क्वेश्चन इसका सॉल्व कर सको। मैं तुम्हें एक वर्कशीट देने वाला हूँ आज, ताकि तुम लोग अभी खुद चेक कर सकते हो तुम्हारा कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। और ये जो वर्कशीट होगी ना, ये ऐसी वैसी वर्कशीट नहीं है, ये बहुत ही स्पेशल वर्कशीट है। इट इज़ बेस्ड ऑन पास्ट 10 years ऑफ बोर्ड क्वेश्चंस फ्रॉम दीज टॉपिक्स विच आई टॉट यू। पिछले 10 साल में बोर्ड ने किस टाइप के क्वेश्चन पूछे थे, वही सारे क्वेश्चन इसमें वर्कशीट में है। जब तुम सॉल्व करोगे, लिखोगे, तुम्हें खुद समझेगा, अरे हाँ ये सर ने बताया था, लेक्चर में बताया था, या फिर ये अपने डाउट सॉल्विंग सेशन या क्विज में हमने पढ़ा था इसके बारे में। तुम्हें खुद पता चलेगा कि ये सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हुए हैं। एंड देन फॉर राइटिंग द आंसर्स it will become easier for you. So I want the whole process to become more you can say engaging, ताकि तुम भी काम कर सको, मैं भी फॉलो अप कर सकूँ तुम पे। अगर मैं सिर्फ टीचिंग पे फोकस करूँगा, तुम क्या समझ रहे हो मुझे नहीं समझ में आएगा। इसलिए मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तुमको कि आई शुड नो दैट व्हाट यू आर अंडरस्टैंडिंग, व्हाट यू आर गेटिंग। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स लवर, एंड वी आर ट्रेडिंग डिफिकल्ट पाथ नाउ, ठीक है। धीरे धीरे चीज़ें टफ हो जाएगी। अथर्व, हाँ अभी आंसर एकदम फटाफट आया। एक आई थिंक बूस्ट की ज़रूरत होती है आंसर फास्ट लाने के लिए। अथर्व मेरे को बता, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर depends. Factors on which resistance of conductors depends. Resistance of a conductor depends.
4 फैक्टर है, बता। एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? सुनाई नहीं दे रहा है मुझे। अथर्व माइक को ऑन रख और बात कर। अथर्व, कैन यू हियर मी? बोलो ना, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। Okay, I would like to go ahead to somebody else. Kesher? Kesher, can Yes, you? sir. Yeah, please Yes, tell sir. me. Tell me the factors. So the factors which affect the resistance are like temperature, then Okay, number 1, temperature. material of conductor, Material of conductor. Very good. area of cross section, Area of cross section. Very good. Area of cross section को दूसरा नाम है thickness. yes, sir. Okay, and anything else? The length, conductor, Length of conductor. Absolutely correct. Very good, Kesha. yes. Next, Krishna. Can you hear me? Can you tell me how does the temperature affects the resistance? टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है? Sir, I don't know, sir. You have not seen this lecture. No, sir. Why? Sir, I was having some doubts on the last lecture, so I was watching the. I You- rewatched the other lectures. You need to manage your time because we need to finish our syllabus by November. That is our target. By November end, we should be done with class 10th syllabus. If we want to finish everything in time, you need to manage your time at home. You need to do all the tasks given to you, as well as the other lectures, other subjects. ठीक है? तो घर पे टाइम तुम्हें कम मिलेगा अपने लिए क्योंकि तुम क्लास 10th में हो. इट इज़ नॉट अ बिग डील. कोई बड़ी बात नहीं है इसमें. गीतिका, So, please tell me how is temperature? Yep. so the resistance of the metals increase and decrease with the decrease of the material temperature. So that means to cut it short, can we say that resistance is directly proportional to temperature? Yes, sir. See, resistance is directly proportional to temperature का मतलब है अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, टेम्परेचर कम है तो रेजिस्टेंस कम होगा. दैट इज़ राइट. वेरी गुड. कैन यू टेल मी हाउ इज रेजिस्टेंस डिपेंडेंट ऑन मटीरियल ऑफ कंडक्टर? So with the high value of P will have high resistance and vice versa. थोड़ा सा ना अभी रो या रो को मतलब रेजिस्टिविटी को हम लाएंगे नहीं बीच में. वी विल जस्ट टॉक अबाउट इंसुलेटर्स. ठीक है, पुअर कंडक्टर्स एंड कंडक्टर्स, गुड कंडक्टर्स. ठीक है, इंसुलेटर में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है. पुअर कंडक्टर में रेजिस्टेंस की वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं होती है. इट इज़ समवेयर इन द मिडल. ठीक है, और कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस की वैल्यू लो होती है. So you can say different types of material have got different values of resistances. Insulators have got high resistance, infinitely high. Poor conductors have got medium resistance. You can say sufficiently or fairly high, not infinitely but fairly high. ठीक है, and conductors have comparatively low resistance. This is how material of the conductor and the resistance are related. ठीक है, so this is how you explain right now.
We will talk about resistivity very soon, and that time our concept will be clear. ठीक है. Area of cross section. Aniket, Yes, sir. area of cross section. How does the resistance depends on area of cross section? Sir, the Yes. area of cross section. Yes, sir. Yeah. Tell me. See, sir, the area of cross section is inversely proportional to resistance. Very good. Means resistance is inversely proportional to the area of cross section. मतलब जितनी थिकनेस या फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा रहेगा उतना रेजिस्टेंस कम रहेगा, और जितना थिन रहेगा वायर, ठीक है, जितना थिन रहेगा उतना रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा. थिन वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, थिक वायर का रेजिस्टेंस कम होता है. अनिकेत, यू हैव टू एक्सप्लेन मी दिस कॉन्सेप्ट थिकनेस ऑफ वायर एंड रेजिस्टेंस का on the basis of this example which I am showing over here. So this is a thick wire and the same thickness thick wire, thin wire. Tell me, Yes, sir. how does the resistance is affected? How is it affected? What do you think? कैसे रेजिस्टेंस ये थिकनेस पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है? ऑफ कोर्स यहाँ पे रेजिस्टेंस कम है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा है. थिक वायर का रेजिस्टेंस कम क्यों है? अनिकेत, कैन यू एक्सप्लेन दैट? Sir, I think you're struggling with this concept. Let's go ahead and ask Nitish, can you answer? Will you be able to answer this question? Yes, Okay, please try. sir, in a thick wire there is more space to move as compared to thin wire. Thank you, sir. Thank you. I really appreciate this. Finally, you've got first correct answer of our sessions. Applause for you. सब लोग अपना माइक ऑन करेंगे. Round of applause for Nitish. I was thinking that Nitish, कोई तालियां नहीं बजा रहा है, बहुत गलत बात है. I was thinking that Nitish को इंटरेस्ट नहीं है इतना, लेकिन उसको है इंटरेस्ट और उसने करेक्ट आंसर दिया है, क्योंकि बहुत लोगों को ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता, नहीं आता है समझ में कि थिक वायर के पास ज़्यादा स्पेस होती है. फॉर द सेम लेंथ, इफ़ यू सी द एरिया ऑफ क्रॉस, सॉरी, इफ़ यू सी द surface area, thick wire has got more surface area. More surface area. More surface area means more space. ठीक है, स्पेस ज़्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के पास मूव करने का जगह ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इजीली मूव कर सकते हैं पास्ट देयर ऑब्स्ट्रक्शंस. बट थिन वायर में सरफेस एरिया कम है, स्पेस कम हो जाती है, सो इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट मूव स्विफ्टली. ठीक है, इसलिए थिन वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है और थिक वायर का कम रहता है. वेरी गुड. आई वुड लाइक टू गो नेक्स्ट टू निहारिका. Yes, sir. Length. How is resistance dependent on length? So when the length of the conductor is short, resistance is low. Very good. When the length of the conductor is high, then the resistance is also high. Absolutely correct. Resistance is directly proportional to length. You can say that directly. Resistance is directly proportional to length. मतलब जितना ज़्यादा लेंथ उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस. ठीक है, जितना कम लेंथ उतना कम रेजिस्टेंस. एंड आई वुड लाइक टू ask you the reason as well, Miss Niharika. The question is, there are two conductors
ठीक है, who are shown in front of you clearly having different lengths. इसका लेंथ है L, इसका लेंथ है 2L. So can you tell me, if the resistance of this conductor is R, what will be the resistance of this conductor below? So 2R. Absolutely correct. And tell me the reason behind it now. Now comes the reason So- part. Yes. So because in the first conductor, Mm-hmm. whose length is L, Mm-hmm. so the being the length, so the length of that conductor is short, Yes. so that's why the resistance is low. Exactly. Electrons have to travel short distance. पहले कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल शॉर्ट डिस्टेंस जितना कम उतना इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्स्ट्रक्शन कम फील होगा. एंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स दे ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस. इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस. इसका मतलब है उतना ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन फील करना पड़ेगा लंबे टाइम तक, तो मतलब रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा. So you are absolutely correct. Resistance is directly proportional to the length of the conductor. ठीक है, and reason भी सही था. ठीक है. अच्छा, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है, and I am going to give this chance to every one of you. मैं सबको चांस देना चाहता हूँ, कोई भी आंसर कर सकता है. मेरे पास एक रेजिस्टर है. Hey, why I'm drawing again? I already have drawn it. मैं इधर से लेता हूँ ना ये वाला. मेरे पास एक रेजिस्टेंस है ये, ठीक है, और दूसरा रेजिस्टेंस है ये. सॉरी, रेजिस्टेंस नहीं, सॉरी, कंडक्टर. आई हैव दीज टू कंडक्टर्स. वन इज थिक एंड शॉर्ट. थिक एंड शॉर्ट. अनदर इज थिन एंड लॉन्ग. कैन एनीवन टेल मी किसका रेजिस्टेंस कम होगा? First. This is A and this is B. You can now answer A and B. तुम 4 बार बोलोगे तो तुम्हारा आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऐसा किसी ने बोला है क्या? ए मतलब मैं करेक्ट हूं. प्रणव, Yes, sir. किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, ए या बी? Sir, B. किसका रेजिस्टेंस कम है, ए या बी? A. वेरी गुड, वेरी गुड. मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है अभी तुम लोग का. थिक एंड शॉर्ट वायर का रेजिस्टेंस कम होता है, थिन एंड लॉन्ग वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है. ठीक है, सो रेजिस्टेंस इज लेस और यहाँ पे रेजिस्टेंस इज हाई. वी नो द रीज़न वेरी वेल. सरफेस एरिया एंड द लेंथ, दैट इज डिस्टेंस कवर्ड. यही है रीजंस. ठीक है, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, रिमेंबर दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी टारगेटिंग योर कॉन्सेप्ट्स विच यू हैव पिक्ड अप फ्रॉम द लेक्चर. जनरली क्या होता है पता है, आई हैव चेंज माई मेथड ऑफ टीचिंग बिकॉज आई नो वन थिंग. जब मैं लेक्चर देता हूँ ना तो आधे लोग सोते हैं. चाहे मैं कितना भी बीच में कुछ अगर मैं जोक मार दूं या कुछ इंटरेस्टिंग बना दूं तो तब या हा मतलब एकदम एक्साइट हो जाते हैं, अरे वाह मज़ा आ गया. बट जैसे ही मैं कॉन्सेप्ट पे वापस आता हूँ तो फिर वापस वो अपनी ख्यालों की दुनिया में खो जाते हैं. सो मैंने एक चीज़ डिसाइड किया कि तुम लोगों को ना चैन से बैठने नहीं देना है. अगर जैसे ही चैन से बैठने दिया तो तुम अपने कंफर्ट जोन में अपने ख्यालों की दुनिया में खो जाते हो. तो तुम लोगों को बार बार टारगेट करना है, तुम लोगों को बार बार क्वेश्चन पूछना है, हिलाना है तुमको. उठ बेटा जाग, क्या कर रहा है. ठीक है, तभी तुम लोग ध्यान देते हो. तो इसलिए मैंने 2 चीज़ अलग कर दिया. तुम लेक्चर देख के आओ और मैं यहाँ पे तुम्हारी वाट लगाऊंगा. ठीक है, यही होना चाहिए तुम लोगों के साथ, तो ही कुछ काम आएगा यार. तो जिसको लगता है कि क्या टॉर्चर है यार लेक्चर देखो फिर इसका सवाल जवाब, बेटा होने तो ऐसे ही वाला है.
क्योंकि तुम इतने कंफर्टेबल हो चुके हो तुम्हारी वो स्कूल की मेथड से और जो पुरानी पढ़ाने के तरीके हैं उससे, कि तुमको ये कंफर्ट जोन से निकाल के तुमको क्वेश्चन करना ज़रूरी है। क्वेश्चन के आंसर भी मैं दूंगा, नहीं आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बहुत सारे आंसर दे रहा हूँ, पूरे लेक्चर में डिस्कशन ही हो रहा है, लेकिन सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल है कौशल से, जिसने वीडियो नहीं देखा, एंड आई डोंट नो व्हाई कौशल इज डूइंग बिहेविंग इन सच अ वे सिंस कपल ऑफ वीक्स, मुझे वो ऐसा ऑफ लग रहा है। क्या हो गया कौशल? व्हाट हैपेंड बेटा? why do you seem lost? देखो मुझे पता है कि तुम अभी जवान हो रहे हो, तुम्हारे प्रेफरेंसेस चेंज हो रहे लाइफ में, मुझे पता है, मैं जानता हूँ, लेकिन सब ठीक है ना भाई? लॉकडाउन में सब ठीक है ना? कोई लड़की वड़की का तो अच्छी तो नहीं लग रही तुमको, तो तुम्हारा ध्यान वहाँ पे तो नहीं जा रहा है? पक्की बात है ये? आर यू फोकस्ड? Yes, sir. This is a remark which we explain in case. So we can go with it. ओके ठीक है कौशल, यू विल आंसर माई क्वेश्चन। सपोज ये दोनों कंडक्टर है मेरे पास, थिक एंड शॉर्ट एंड थिन एंड लॉन्ग, ठीक है, और ये दोनों का जो मटेरियल है दैट इज कॉपर, ये दोनों कॉपर से बने हैं, ये भी कॉपर है, ये भी कॉपर है, ठीक है। लिसन टू माई क्वेश्चन वेरी वेरी नाइसली, बिकॉज इट इज 99% प्रोबेबिलिटी तुम्हारा आंसर गलत होगा। विच वन out of A and B is a good conductor? बहुत ध्यान से सोचना, which one out of A and B is a good conductor? 99% चांसेस लोगों के गलत होते हैं इसके आंसर्स। Pranav is raising his hand and I'm so happy, man. I'm very happy. But I want first Kaushal to try. Then I will go to Pranav. Yes, Kaushal. चलो कर दो आंसर। B. Okay, your answer is B. Now I would like to go to Pranav and ask him. Sir, both are good conductors. You are absolutely correct, sir. Absolutely correct. Both are good conductors. मैंने ऊपर ही बताया था कि factors on which resistance depends is material of conductor. और material में conductor, poor conductors और insulator इनको अलग अलग किया था। अब यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन पूछा है उसमें एक थिक वायर है और जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा है और शॉर्ट भी है, और दूसरा थिन एंड लॉन्ग है, और मैंने पूछा है विच वन आउट ऑफ ए एंड बी इज अ गुड कंडक्टर, एंड प्रणव हैज टोल्ड मी बोथ आर गुड कंडक्टर्स। नाउ प्रणव, टेल मी व्हाई डू यू से सो? Sir, because copper is only a good conductor of electricity. Exactly, you are absolutely correct. Because we are talking about copper here, and copper is a material which is a good conductor of electricity. यहाँ पे उसके रेजिस्टेंस या फिर इंडिविजुअल जो वायर्स है कॉपर के अलग अलग, उनके रेजिस्टेंस का कोई लेना देना नहीं है। भले उनका रेजिस्टेंस अलग होगा, ऊपर वाले वायर ए का जो रेजिस्टेंस है वो कम होगा, नीचे वाले वायर बी का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, लेकिन वो दोनों गुड कंडक्टर है। मतलब गुड कंडक्टर डज नॉट डिपेंड द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग अ गुड कंडक्टर। रिमेंबर एवरीवन, the property of being a good conductor does not depend on area of cross section and length. So there must be some another quantity जो ये गुड कंडक्टर या बैड कंडक्टर को डिफरेंशिएट करती है। रेजिस्टेंस इज डेफिनेटली नॉट। अगर हम रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करके गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर के बीच में पता लगाने की कोशिश करेंगे तो हम लोग गलत प्रूव हो जाएंगे, क्योंकि हम बोलेंगे कि बी का रेजिस्टेंस ज़्यादा है इसलिए वो बैड कंडक्टर है, ए का रेजिस्टेंस कम है इसलिए गुड कंडक्टर है, लेकिन ये गलत है, दोनों कॉपर है, दोनों गुड कंडक्टर है। सो माई क्वेश्चन इज व्हाट इज दैट प्रॉपर्टी विच डिफरेंशिएट्स बिटवीन a material who is a good conductor and a bad conductor
and my question is for Arpita. So number of electrons flowing in a material. That is current basically. See, करंट ऊपर वाले ये वायर में ज़्यादा होगा, ठीक है, इसमें करंट ज़्यादा होगा और इसमें करंट की वैल्यू कम होगी, तो करंट इज़ नॉट द प्रॉपर्टी. करंट इज़ एब्सोल्युटली नॉट द प्रॉपर्टी. अर्पिता, हैव यू हर्ड अबाउट रेजिस्टिविटी? Yes, sir. दैट इज़ द प्रॉपर्टी. रेजिस्टिविटी इज़ द प्रॉपर्टी. सो अब बात करेंगे हम लोग रेजिस्टिविटी के ऊपर, एंड अब चीज़ें और बोरिंग हो जाएगी क्योंकि रेजिस्टिविटी बहुत ही कॉम्प्लेक्स है समझना. उसका यूनिट, उसके न्यूमेरिकल्स सब अलग है, ठीक है. सो रेजिस्टिविटी पे थोड़ी बात करते हैं. रेजिस्टिविटी का सिंबल क्या है अर्पिता? Sir, R. नो. अर्पिता, Sir, I don't know. यू डोंट नो. यस प्रणव. प्रणव हैट्रिक पे. Ohm per meter. बेटा वो उसका, ओ तू मेरे को यूनिट ही बता रहा है. आई एम सॉरी. मेरे को यूनिट नहीं पूछना था, मुझे सिंबल पूछना था. सिंबल. Sir, rho. वेरी गुड. द सिंबल फॉर रेजिस्टिविटी इज रो. ये रो है ना, एक ग्रीक लेटर है, RHO. रो. रो इज अ ग्रीक लेटर, ठीक है. ये रेजिस्टिविटी का सिंबल होता है, ठीक है. दिस इज द सिंबल फॉर रेजिस्टिविटी, रो. अब ये रो का फॉर्मूला क्या होता है? अरुणिमा, कैन यू प्लीज टेल मी? Yes, sir. So rho is equals to RA upon L. Very good. R into A, the whole upon L. So this is very interesting. Now see how the question, I'm going to answer this question over here. How resistivity is independent. ठीक है. हाउ रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया एंड लेंथ. रेजिस्टिविटी एरिया और लेंथ पे इंडिपेंडेंट, मतलब एरिया और लेंथ पे डिपेंड क्यों नहीं करता? आई विल टेल यू द आंसर व्हाई. ठीक है. लुक एट द न्यूमरेटर ओवर हियर. ठीक है, मैं न्यूमरेटर को यहां पे सिंगल आउट करके लिखता हूं, R टाइम्स A. इसका जो न्यूमरेटर है ना वो कांस्टेंट है. क्यों कांस्टेंट है मैं बताता हूं. देखो, जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तुम बढ़ाओगे उतना रेजिस्टेंस कम होगा, और अगर तुम देखो जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तुम कम करोगे उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा. मतलब ये दोनों का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट इज ऑलवेज कांस्टेंट. मतलब एरिया को चेंज करने से रेजिस्टेंस चेंज होता है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा सेम रहता है. दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. और ये वाली पेयर को देखो, ये वाली पेयर को देखो, R बाय L. ठीक है, R बाय L का जो कोशेंट है या फिर डिवीजन है वो हमेशा कांस्टेंट होता है. क्यों कांस्टेंट होता है मैं बताता हूं तुम्हें. लेंथ को बढ़ाओ रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, लेंथ को कम करो रेजिस्टेंस भी कम हो जाता है. मतलब ये फ्रैक्शन, लेंथ के चेंज होने से ये फ्रैक्शन भी चेंज होता है. मतलब ये जो पूरा वैल्यू है इट रिमेन्स कांस्टेंट फॉर एनी मटेरियल. कोई भी मटेरियल के लिए उसका कोई भी एरिया या कोई भी लेंथ हो, ये जो वैल्यू है रेजिस्टिविटी, इट डज नॉट चेंज. तो रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ओनली ऑन टू फैक्टर. नंबर 1 टेम्परेचर, नंबर 2 area of cross section. I'm sorry. Material of conductor. ठीक है, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मटेरियल ऑफ कंडक्टर. सिर्फ इन दोनों पे डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी, एरिया और लेंथ पे डिपेंड नहीं करता. इसका मतलब है मेरे पास यहाँ पे कॉपर था, कॉपर का वायर एक थिक और शॉर्ट था और एक थिन और लॉन्ग था.
दोनों का एक चीज सेम है, क्या है? रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी should be the quantity which decides whether who is good conductor and who is bad conductor. That's why resistivity is the deciding factor. Deciding factor resistivity इसीलिए है, ठीक है? So remember this. This is extremely important. Resistivity का मैंने तुम्हें importance बताया। तो अगर तुम्हें दो मटेरियल में से डिसाइड करना है हु इज गुड कंडक्टर एंड हु इज बैड कंडक्टर, तो तुम कौन सी क्वांटिटी को चेक करोगे? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का सिंबल क्या है? रो। फॉर्मूला क्या है? R इंटू ए बाय एल। इसका एसआई यूनिट क्या है? देखो, R का एसआई यूनिट है ओम, एरिया का है मीटर स्क्वायर, लेंथ का है मीटर। मीटर और मीटर स्क्वायर कट हो जाएगा, क्या मिलेगा? ओम मीटर। रेजिस्टिविटी का ये है एसआई यूनिट, ठीक है? और ये उसका फॉर्मूला, ये उसका सिंबल, ये उसके एसआई यूनिट का सिंबल, सब कुछ हो गया। दिस इज रेजिस्टिविटी। अच्छा, यहां से हम एक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं। सो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होगा रो एल बाय ए। रो एल बाय ए, याद रखना है पी नहीं है, ये रो है, RHO, ग्रीक लेटर है, ग्रीक। फिजिक्स में बहुत सारे ग्रीक लेटर्स का यूज होता है। ये याद होगा तुम्हें, लैम्बडा, मत लैम्बडा तुमने पढ़ा नहीं है लास्ट ईयर, ठीक है? अभी मैंने एक बताया था, ओमेगा, एक होता है पाई, एक होता है अल्फा, एक होता है सिग्मा, एक होता है बीटा, एक होता है गैमा। ये सब ग्रीक लेटर्स है। फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में ग्रीक लेटर्स का बहुत यूज़ होता है। 11th-12th में तो तुम पागल ही हो जाओगे, पूरी ग्रीक ABCD आ जाती है। मतलब अलग अलग सिम्बॉल्स, अलग अलग यूनिट्स के लिए, कुछ दो अलग अलग यूनिट के लिए सेम सिम्बॉल यूज़ होता है, बहुत कंफ्यूजिंग होता है वो। थीटा तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ने मिलेगा आगे, थीटा, ठीक है? फाई, ठीक है? बहुत सारे हैं, पूरा अल्फ़ाबेट्स का उनका सिस्टम, ठीक है? एक ओमेगा, एक ऐसा भी होता है, एक ये ओमेगा होता है, एक ये ओमेगा होता है। बिगर केस एंड स्मॉलर एंड बिगर केस वाला है ये सिस्टम, ठीक है? सो दो फॉर्मूला मैंने बताया तुम्हें, एक तो रेजिस्टिविटी का ये वाला और एक है रेजिस्टेंस का ये वाला। दोनों एक ही से डिराइव किए गए हैं। सो यू कैन यूज देम फॉर मेजरिंग योर अननोन वैल्यू और फाइंडिंग योर अननोन वैल्यू। सो आई थिंक I will show you some more facts and then we'll go. You see, these are the resistivities. सिल्वर की रेजिस्टिविटी सबसे कम है, लोएस्ट रेजिस्टिविटी। दे आर वेरी गुड कंडक्टर, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम। फिर रेजिस्टिविटी बढ़ती जाती है, देखो। एंड देन कम्स सर्टन अलॉयज जिसकी रेजिस्टिविटी इतनी लो नहीं है लेकिन इतनी हाई भी नहीं है, ठीक है? मिडल में है। एक तो है नाइक्रोम। नाइक्रोम में क्या क्या होता है? उसकी रेजिस्टिविटी देखो 100 × 10⁻⁶। ऑफकोर्स सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम से बहुत ज़्यादा है, लेकिन नाइक्रोम में क्या क्या होता है? निकल, क्रोमियम, मैंगनीज और आयन। ये सबसे ज़्यादा रेजिस्टिविटी है नाइक्रोम की। बट इसको यूज कहाँ पे करते हैं? इट इज़ यूज टू मेक स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स फॉर इलेक्ट्रिक आयन, टोस्टर्स, गीज़र, हीटर, माइक्रोवेव, सब में यूज होता है नाइक्रोम, क्योंकि वो हीट प्रोड्यूस करता है। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है ना, या रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है किसी भी कंडक्टर की, तो उसमें ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा होता है। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब कोलिजन बिटवीन मूविंग इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉन मूविंग पार्टिकल्स। ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है बिकॉज ऑफ कोलिजन्स एंड फ्रिक्शंस, ठीक है? सो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, तो हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, हीट को। ओके, सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आई वुड लाइक टू गो टू, दैट इज, लेट मी चेक over here the numericals. Okay guys, so we are on our first numerical. है जान बची है या फिर हो गया, कैपेसिटी ख़त्म हो गई दिमाग की? नहीं, बोलो, बिंदास बोलो यार, ऐसा नहीं है, बिकॉज इट्स 1.5 hour एंड आई डोंट वांट टू स्ट्रेच यू बियॉन्ड योर लिमिट्स, क्योंकि अगर दिमाग फिर बंद हो जाएगा काम करना तो न्यूमेरिकल्स नहीं समझ में आएंगे।
ठीक है, न्यूमेरिकल्स फिर हम लोग वेडनेसडे वाले लेक्चर में करेंगे, चलेगा? इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या तुम्हारा? पक्का? ओके अब देखो मेरे फाइनल मैसेज को सुन लो आज के लिए। जिसने वीडियो नहीं देखा लेक्चर, कौन सा वाला, ये टॉपिक का, वो देखेगा, ठीक है? तो आज का फिर पूरा कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। मानस तुमने नहीं देखा, कौशल ने नहीं देखा, निहारिका ने देखा है क्या? निहारिका ने देखा है, और किसने नहीं देखा था? कौन 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 बोला नहीं देखा? हाँ, कृष्णा ने नहीं देखा। अथर्व ने देखा है क्या? सॉरी, हाँ, लिटिल बिट को कंप्लीट करो। वो ठीक है यार, वो सब तो हो गई। देखो तुम एज अ स्टूडेंट तुम्हारा काम ही है, बर्तन तो नहीं धो रहा था ना तू, झाड़ू पोछा तो नहीं लगा रहा था ना, तो स्टूडेंट का काम ही कर रहा था तू, तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तेरे को टाइम मिल